channel, guys. So let's start today's news discussion. हमारा first article है. Our first article is related to our Agnipath scheme. That is, the Union Cabinet approved an attractive requirement scheme for India youth to serve in the armed forces. ठीक है. This scheme is called Agnipath and the youth selected under this scheme will be known as Agniveers. जो स्कीम के अंदर यूथ सेलेक्ट होंगे उनको बोला जाएगा अग्निवीर. क्लियर? सो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है, ये न्यूज में थी, डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से अबाउट द स्कीम. व्हाट इज इट? It is a pan-India short-term service. Pan-India मतलब all over India. It is a pan-India in-term service youth recruitment scheme for the armed forces. इसका aim क्या था? The scheme has been designed to enable a youthful profile of the armed forces. कि उनका जो average age था 32 से कम होकर के 26 रह जाएगा या 28 अराउंड, जो average age for Indian Army. तो इसका मतलब the scheme has been designed to enable a youthful profile of the armed forces. इसे की फीचर्स की बात कर लें, क्या क्या फीचर्स थे स्कीम के अंदर. तो अंडर द स्कीम अराउंड 45,000 to 50,000 अग्निवीर्स विल बी रिक्रूटेड एनुअली. इस स्कीम के अंदर जितने भी जो भर्ती किए जाएंगे यूथ, जिनको अग्निवीर बोला जाएगा, तो उनको सिपाही जितने भी आपके मतलब 45,000 से 50,000 अग्निवीर विल बी रिक्रूटेड एनुअली. हर साल इतनी किया जाएगा अंडर रिस्पेक्टिव सर्विस एक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. 4 साल के लिए होगा. और यहीं पे आपको पता है दिक्कत आ रही है हर जगह, आगजनी हो रही है और इसी को लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं. which I personally, this is not something that government should have taken into their hands. Somewhere I'm also not, though I'm not blaming any government, I'm neutral in this, but on this note I would say that it is generally, it is just my point of view. अगर अपना point of view बताऊं एक लाइन में, तो I was also not in a favor of this अग्निवीर जो इसकी निकली है हर 4 साल के लिए, because it is ultimately is not going to be good for nation. That is my take. तो चलिए बात करते हैं, फिर से टॉपिक पे जाते हैं. तो इसका क्या होगा, 4 साल के लिए इसका एग्जिस्टिंग पर रहेगा. फिर क्या होगा, they would form a distinct rank in the armed forces different from any other existing ranks. Upon the completion of 4 years of service, Agniveers will be offered an opportunity to apply for permanent enrollment in the armed forces. ठीक है. These applications will be considered based on objective criteria including performance during their 4-year engagement period and up to 25% we can say. तो स्पेसिफिक 25% लोगों को इसमें हो सकता है कि आगे रिटेन किया जाए, लेकिन मैक्सिमम जो होगा आपके 4 साल के लिए ही ये वैलिड रहेगा. ठीक है. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें देख लेते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अंडर द स्कीम एस्पिरेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 17.5 years and 21 years will be eligible to apply. राइट 17 से मतलब 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए. द रिक्रूटमेंट विल बी डन ट्वाइस अ ईयर थ्रू रैलीज. मतलब साल में 2 बार की जाएगी रिक्रूटमेंट. जॉब के पर्सपेक्टिव से देखें तो ठीक है कि जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसमें भी आपका देखे जाएंगे तो पैकेज वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया इसके प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बता ही रही हूँ. ठीक है. सो आगे हम इसमें बात कर लेते हैं कि हाउ विल द रिक्रूटमेंट विल बी डन. रिक्रूटमेंट कैसे की जाएगी? रिक्रूटमेंट विल बी डन through online centralized system for all 3 services with specialized rallies and campus interviews. ठीक है. कैंपस इंटरव्यूज होंगे, ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड स्कीम होगी फ्रॉम recognized technical institutes such as Industrial Training Institute and National Skills Qualification Framework among others. सैलरी की बात करें अग्निवीर की, तो क्या सैलरी रहेगी यहाँ पे? अग्निवीर्स will get a starting salary of ₹30,000 along with additional benefit which will be around go up to 40,000 तक चले जाएंगे by the end of the 4-year service. During the starting है कितना, लेकिन 30,000. During the 4-year period 30% of the salary will be set aside under a सेवानिधि प्रोग्राम. सेवानिधि प्रोग्राम मैंने आपको पहले बताया था, पेंशन जो ग्रीवियंस का जो होता है उसमें 30%, जब वो कल ही के आर्टिकल में डिस्कस किया सेवानिधि. ई सेवानिधि नहीं है तो जाके आर्टिकल वो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, कंपाइलेशन जैसे मैंने करवाया वो जाके वो देख लीजिए. एंड द गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट एवरी मंथ एंड दिस अमाउंट विल बी एक्वायर इंटरेस्ट. एट द एंड ऑफ द 4-year पीरियड अ सोल्जर विल गेट 11,71 लाख रुपीज उसके हाथ में होंगे जब वो रिटायर होगा सोल्जर 4 साल के बाद. लमसम अमाउंट के आसपास को बोला गया और ये टैक्स फ्री होगा, इस पर टैक्स नहीं होगा चार्ज. दे विल आल्सो गेट ₹48 लाख फॉर लाइफ इंश्योरेंस कवर. लाइफ इंश्योरेंस कवर भी उनका रहेगा 48 लाख का, कि अगर इनकेस अगर जवान को उस दौरान कुछ हो जाता है 4 साल के दौरान में कहीं डेथ हो जाती है, और इसके साथ अगर डेथ हो जाती है तो उनको ₹1 करोड़ भी मुआवजा दिया जाएगा इंक्लूडिंग पे ऑफ अनसर्व टेन्योर. अगर उन्होंने सर्व भी नहीं किया फिर भी उनको 1 लाख रुपए, अगर उसमें अग्निवीर में आ गए तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा. बेनिफिट्स क्या है स्कीम के?
बेनिफिट ऑफ स्कीम आर्म फोर्सेज आर ए, ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म होगा इससे, एक तो जैसे सदियों से चलती परंपरा एक ट्रांसफॉर्म होगा, उसमें चेंज आएगा। ठीक, सेकंड, अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ टू सर्व द कंट्री एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। एक तरीके से हर कोई आर्मी में जाना चाहता था, तो अब हर एक लोगों को मौका मिलेगा। एज वी नो कि साल में 2 बार रिक्रूटमेंट पॉलिसी कराई जाएगी, हर साल तो होगा ही होगा। अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेज भी होगा इसमें, अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेज। बट फर्स्ट पैकेज तो है, लेकिन अगर मैं इसकी नेगेटिविटी की बात करूँ, ये तो पॉजिटिव साइड हो गया। अगर मैं इसकी नेगेटिव साइड की अगर बात करूँ तो वो सिर्फ 4 इयर्स की है। बी पॉइंट 30,000 सैलरी है। थर्ड पॉइंट, youth won't be able to complete his or her graduation and study simultaneously. Fourth point, and if the youth will come out of their pension period, वहां से they will not get any kind of a pension, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो आगे नेक्स्ट आर्टिकल हम शिफ्ट हो जाते हैं। सेकंड आर्टिकल हमारा है यूनाइटेड नेशन ऑफिस एट जिनेवा। The United Cabinet has approved the proposal for the signing of an agreement between the Government of India and the United Nations on a wayfinding application to be used in the Palaces this Nations United Nation Office at Geneva. UNOG क्या होता है? यूनाइटेड कैबिनेट हैज यूनाइटेड कैबिनेट। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ लेते हैं इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन इसकी है पैलेस दिस नेशन इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। पर्पस क्या है इसका? रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल इन जिनेवा। ठीक है, इट सर्व्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल इन जिनेवा। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इट इज द बिगेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट आउटसाइड ऑफ हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अलावा, मतलब आउटसाइड न्यूयॉर्क के अलावा बिगेस्ट यूएस का हम मान सकते हैं कि बिगेस्ट डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो ये है, इसके बाद हम देख लेते हैं क्या फाइंडिंग्स है इसकी। फाइंडिंग्स इसकी है 5 बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 5 बिल्डिंग्स एंड 21 फ्लोर्स है इसकी। अ लार्ज नंबर ऑफ डेलीगेट्स विजिट यहाँ पे यूएन में यहाँ पे विजिट करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस में। ठीक है, 21 फ्लोर की बिल्डिंग है ये। Keeping in view complexity of buildings and huge participation, there was a recruitment for a navigational application which can help the visitor in finding their way inside the premises. Who will be developing? India has taken up the project to develop a wayfinding application. The application will facilitate navigation on the premises of United Nation Office Geneva. ठीक है, UNOG इसको बोलते हैं। सेकेंड हमारा है माया टेक्निक के रिलेटेड एक न्यूज में आया हुआ है। माया टेक्निक ऑफ maize fortification. A study has thrown light on the Maya people fortified their maize with the chemical process known as nixtamalism. ठीक है, nixtamalization, and also built indoor toilets in the pits they dug into the limestone bedrock of the Yucatan Peninsula in Mesoamerica. लोकेशन आप देखना, मैंने मैप में दिखाई है, आपको दिखा दे दूं। यहाँ पे ये आपका मेक्सिको जैसे आपको लोकेशन दिख रही होगी माया। ठीक है, माया सिविलाइजेशन वाज अ मेसोमैक्रियन सिविलाइजेशन, American civilization. The civilization originated in the Yucatan Peninsula. कहाँ पे? यूकाटन और मेक्सिको और ग्वाटेमाला बे जो साउथ मेक्सिको उसके बीच का लोकेशन है। The civilization developed in the area that today comprises the southern east Mexico, all of the Guatemala Bay, जैसे मैंने आपको बताया, western port of Honduras and El Salvador, ये इसके आसपास के एरियाज हैं। This civilization was known for the monumental architecture and advancement undertaking of mathematics and astronomy. The civilization flourished between 600 and 800 AD. However, between 800 and 950 AD, many of the cities of civilization were abandoned. This period is called collapse of the classic Maya civilization. ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं कि nixtamalization technique used by Mayas। तो इसके बारे में देखते क्या थी। यूज्ड टू सोक एंड कुक देयर मेज इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड मेक इट मोर पैलेटेबल, न्यूट्रिशियस एंड नॉन टॉक्सिक। ठीक है, निक्सटामल इज डिराइव्ड फ्रॉम द नहुतल वर्ड निक्सटमालाई मीनिंग निक्सटमलाइज्ड मेज डव, ये इसका मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ। ठीक है, मेज इज द प्राइमरी क्रॉप ऑफ द अमेरिकास एंड हैज बीन कल्टिवेटेड इन द रीजन ऑफ मिलेनिया। द रिसर्चर नोटेड दैट द की रीजन फॉर a spread of maize in the America was nixtamalization. The process ensured that the maize contains amino acid, calcium and vitamin B2 which can be utilized by the human body. It also eliminates certain mycotoxins. ठीक है, toxins produced by certain molds, fungi and can be found in food present in maize. Without this treatment, maize dependent populations were at elevated risk of pellagra, जिसकी विटामिन 2 की डिफिशियंसी से इसको बोला जाता है, विटामिन B2 की डिफिशियंसी से इसको बोला जाता है पेलाग्रा, कैल्शियम डिफिशियंसी एंड माइकोटॉक्सिन्स पॉइजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के बारे में। तो चलिए इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में है, इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं।
It is produced by the Energy Policy Institute at the University of Chicago, जिसको हम बोलते हैं EPIC, APIC. Purpose क्या था इसका? The index converts air pollution concentration into their impact on life expectancy. From this, the public and the policymakers alike can determine the benefits of the air pollution policy and perhaps the most important measures that exist no longer lives. एयर क्वालिटी सभी को मेंटेन करना बनता है. ग्लोबली भी अगर हम बात करें, एयर पोल्यूशन रिड्यूसेस फ्रॉम 2.2 years ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इससे रिड्यूस होती है. रिसेंटली हमने डेटा देखा था कि इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितनी थी? 69.7 और वर्ल्ड की ग्लोबली कितनी थी? 72.6. याद रखना है डेटा, ठीक है. द इम्पैक्ट ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ स्मोकिंग. ऐसा बोला जा रहा है कि अगर हमारा ऐसा ही एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा तो हर 2.5 साल आप मान के चलो एक हेल्दी व्यक्ति के जीवन से कम हो जाएंगे. प्लस बाकी डिजीजेस भी है, स्मोकिंग भी है, उसको भी बढ़ावा देते हैं. और यूज ऑफ अनसेफ वाटर है, 6 times दैट ऑफ HIV से ज्यादा लोग इससे मरते हैं. 89 times दैट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टेररिज्म से ज्यादा इसमें लोग की जान का खतरा रहता है एयर क्वालिटी अगर हमारी सही ना हुई तो. रिलेटेड टू इंडिया अगर हम बात करें, of all the countries in the world, India faces the highest health burden of air pollution. जैसे हमको पता होगा दिल्ली में सबसे ज्यादा polluted है ना. The average Indian resident is set to lose 5 years of life expectancy if WHO guidelines are to be followed. अगर हम WHO guidelines की अगर हम बात करें तो एवरेज इंडियन की अगर हम बात करें 5 साल उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेटा की अगर हम बात करें. दिल्ली, ऐसे मैंने आपको बताया, द मोस्ट पोल्यूटेड मेगा सिटी है इन दी वर्ल्ड, स्टैंड्स टू लूज 10 years ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द करंट एयर पोल्यूशन लेवल परसिस्ट. दिल्ली की अगर हम बात करें, पूरी वर्ल्ड वाले अगर हम बात करें तो अगर कोई एक इंसान दिल्ली में रहता है तो उसके 10 साल लाइफ के कम हो सकते हैं. अगर वो सपोज करो अगर बंदा 70 साल उसकी लाइफ है तो वो रह जाएगा 60 साल. अगर उसकी कोई एक्सपेक्टेंसी किसी की इंडिया की वैसे 69 है तो 10 साल में से कम करो तो 59 years जिएगा अगर वो दिल्ली में रहेगा. तो ये आपका है. नेक्स्ट आर्टिकल हम बात कर लेते हैं. लंपी स्किन डिजीज के बारे में, जो कि लंपी स्किन की वजह से गाय होती है उसके ऊपर आप लंपी सा उनको गाय के ऊपर एक पैचेस से आपको दिखते हैं, लंपी स्किन हो जाती है उनकी, जैसे लंपी स्किन जैसे आप बोलते हैं ना वैसे. तो कॉजेज वाइज का क्या है हम देख लेते हैं कि अराउंड 1229 कैटल अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात हैव बीन इन्फेक्टेड विद लंपी स्किन. गुजरात में इन्फेक्टेड हुए जिसको बोलते हैं LSD भी बोला जा रहा है इसको, लंपी स्किन डिजीज LSD, कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ कैटल और वाटरिंग बफेलो विद दी पॉक्सीवायरस लंपी स्किन डिजीज वायरस. इसका कॉज क्या है? अगर उनको इन्फेक्शन हो जाए किसी से बफेलो से तो इससे भी ये फैल रहा है थ्रू वाटर. लंपी स्किन डिजीज का मतलब अपनी जो स्किन है गाय की लंपी सी लटक सी जाती है और रेड पैचेस हो जाते हैं. तो लंपी स्किन डिजीज वाज फर्स्ट सीन एज एन एपिडेमिक इन जाम्बिया इन 1929. जाम्बिया की अगर हम बात करें 1929 में ये एपिडेमिक के रूप में आया था, ठीक है. इनिशियली इट वाज थॉट टू बी द रिजल्ट ऑफ ईदर पॉइजनिंग और हाइपर सेंसिटिविटी टू इंसेक्ट बाइट्स. अभी ये क्यों आया न्यूज में? इसका कारण 2 हो सकता है. या तो ये हम बात करें कि एक्सेसिव पॉइजनिंग हो सकती है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है. अगर इंसेक्ट ने बाइट किया तो उससे रैशेस पड़ गया, स्किन बहुत अगर जानवर की बहुत सेंसिटिव है तो उसके कारण भी हो सकते हैं. लंपी स्किन डिजीज के बारे में अगर हम बात करें आगे जाके तो अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द मोर्टालिटी रेट इज लेस देन 10%. मोर्टालिटी रेट की अगर हम बात करें तो लेस देन 10% है, ठीक है. मृत्यु दर इसको बोले 10% से कम है. ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? लंपी स्किन डिजीज इज प्राइमरीली स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स बाय बाइटिंग इंसेक्ट्स या तो काटने से होता है. वेक्टर्स सच एज मस्कीटोज एंड बाइटिंग फ्लाइज, या तो मस्कीटो से आपकी बाइट होगी या जो मक्खियां होंगी उनके काटने से हो जाता है, ठीक है. सिम्टम्स इसके क्या देखने को मिलता है? इट इज प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ फीवर, फ्लूइड एक्सक्रीशन फ्रॉम आईज एंड नोज. फीवर होगा जानवरों को, गायों को, और उनकी आंखों से आंसू आएंगे, नोज से सलाइवा निकल सकता है मुंह से, फ्रॉम द माउथ एंड ब्लिस्टर्स ऑन द बॉडी पे आपके बड़े बड़े फोड़े टाइप निकल सकते हैं. द एनिमल स्टॉप्स ईटिंग एंड फेसेस प्रॉब्लम. जो एनिमल है वो खाना पानी बंद कर सकता है और उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है चबाने में खाने को. इसका नतीजा क्या होता है? गाय में जैसे होता है उसकी प्रोडक्शन, जो मिल्क प्रोडक्शन वो कम हो जाती है. प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या है इसका? वैक्सीनेशन आती है विच इज अगेंस्ट दिस डिजीज इज कवर्ड अंडर द लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया. लंपी स्किन के बारे में अगर हम बात करें, देयर आर नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग. एक कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है. जैसे हम जुकाम के लिए कोई दवाई पर्टिकुलर में बोल पाते हैं, वैसे ही इस डिजीज के लिए भी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग तो है नहीं, लेकिन हाँ कुछ वैक्सीन या कुछ ड्रग्स दी गई, मतलब दवाइयां दी गई ट्रीटमेंट ऑफ दी लंपी स्किन के लिए. द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल इज सपोर्टिव केयर ऑफ कैटल. ध्यान रखें अगर कैटल का तो हो सकता है एंटी इन्फ्लेमेशनल पेन किलर्स. अगर किसी को अगर ज्यादा दवाई तो उनको पेन किलर दिया जा सकता है. कैन बी यूज्ड टू कीप अप द एपेटाइट ऑफ
इफेक्टेड एनिमल, उनका अगर भूख उनको ज्यादा नहीं लगती, उनका एपेटाइट देखने के लिए उनको पेन किलर्स या सब दवाइयां दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। सीपी ईयरबुक 2022 से रिलेटेड है, जिसे आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। रशिया आप बोलेंगे सबसे ऊपर है, नॉर्थ कोरिया नीचे है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ नंबर पे है। देख लेते हैं अबाउट सिप्री ये है क्या। रिसेंटली द स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री बोलते हैं, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च सिप्री, लॉन्च द फाइंडिंग्स ऑफ सिप्री ईयरबुक 2022। लॉन्च किया उन्होंने सिप्री ईयरबुक 2022, which assess the current state of armaments, disarmed and international security. The CIPRI is an independent international institute. CIPRI क्या है? Independent international institute है, dedicated to research into conflict, armaments, arms control and disarmed। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। कहां पे? स्टॉकहोल्म में। CIPRI provides data analysis and recommendation based on open source to policymaker, research, media and the interested public. की फाइंडिंग्स की हम देखें तो क्या है? ग्लोबली अगर हम इसकी बात करें तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स कहां कहां पे है, कौन कौन सी कंट्रीज के बाद कितने, ये देखा जाता है इसमें, क्योंकि पीस डील के बारे में बात की है ना। द 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, कंटिन्यू टू मॉडर्नाइज देयर न्यूक्लियर आर्सेनल्स। इंडिया की अगर हम बात कर ले, इंडिया है 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एज ऑफ द डेटा। अगर हम बात करें जनवरी 2022 की, इंडिया हैज एक्सपैंडेड इट्स न्यूक्लियर स्टॉकपाइल फ्रॉम 156 इन जनवरी 2021 टू 160 इन जनवरी 2022। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो इंडिया का जो डेटा है यहाँ पे 156 बढ़ गया है, 156 से कितना हो गया? 160। ठीक है, आप बोलोगे 4% ही, लेकिन न्यूक्लियर की बात चल रही है। ठीक है, न्यूक्लियर आर्म्ड। एक यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इंडिया डज नॉट शेयर ऑफिशियल डेटा ऑन इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल्स। एक बात और है कि इंडियन की जो गवर्नमेंट है वो न्यूक्लियर डेटा इतनी आसानी से शेयर नहीं करती पब्लिक पोर्टल पे। तो ये जो नंबर्स आपको फिगर्स आ रहे हैं ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। हमेशा इंडिया की जो आर्मी बताते हैं अगर इतनी लाख है तो कम करके डेटा बताया जाता है। सीपी ईयरली बुक की अगर हम बात कर लें, द 5 सीपी क्या है दोबारा बता दूं, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1956 में हुई थी, याद रख लेना। 1966 में हुई थी एट स्टॉकहोल्म। तो द 5 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर इन 2017 एंड 21 में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसने किया था आर्म्स का? 2017 से लेकर 21 तक तो यूनाइटेड स्टेट नंबर 1 पे रहा है, सेकंड फ्रांस, सेकंड रशिया, थर्ड फ्रांस, फोर्थ चाइना एंड फिफ्थ जर्मनी। यूएसए तो चाहता है ये यूक्रेन में जो युद्ध चलता रहे ताकि उसकी जो बिक्री है हथियारों की वो होती रहे। यही तो उनका मेन एजेंडा है। कभी वो अफगानिस्तान में अटैक करते हैं, कभी कहीं और। उनकी वॉर कंसिस्टेंटली चलती रहती है ताकि उनके हथियार बेचे जा सकें। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट नंबर 1 पे है, 17 से 21 की बात चल रही है, सेकेंड रशिया है, थर्ड फ्रांस है, फोर्थ चाइना, फिफ्थ जर्मनी। ठीक, द 5 लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स वर। अब आर्म्स के इंपोर्टर की जो स्टेट की बात करें तो एक्सपोर्टर हो गए, तो इंपोर्टर में सबसे ज्यादा इंडिया है पहला, सेकंड है सऊदी अरेबिया, थर्ड है इजिप्ट, फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया एंड फिफ्थ है चाइना। तो ये था आपका आज का पूरा न्यूज एनालिसिस, जो ये है आपका 16 जून 2022 का हमने डिस्कस किया अभी। ठीक है।